ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ ਸਵਰਗੇ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਧਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए पाठ दे भोग 11 दिसंबर दिन शुक्रवार गुरुद्वारा साहिब पिंड डल्ला विखे पाए गए, जिस विच रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कीर्तन की हाजरी लगवाई ਅਤੇ आईयां होईयां संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। माता चंद कौर जी अपने पिछे अपने परिवार विच रजिंदर सिंह रिटायर्ड सैकटरी मार्केट कमेटी, अमरजीत कौर सपुत्र नूं, अमर कौर मनजीत सिंह जोहल कैनेडा, कुलदीप कौर बूटा सिंह कैनेडा धी जवाई, दविंदरजीत सिंह अमरिंदर सिंह पोते, सुखपाल कौर मनप्रीत कौर पोत नूंहां, रुपिंदर कौर संदीप कौर पोतरियां, कमलजीत सिंह USA, नवजोत सिंह USA पोत जवाई, गुनीत कौर अर्शदीप कौर सुखप्रीत कौर नवदीप कौर पड़पोतियां ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਲੇਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਘਰੇ ਕਹਿ ਆਏ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰੇ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁੱਖੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਵ ਮਰੇਂਗੇ ਕਿ ਸਮਾਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਰਵਾਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਘਾਹ ਚਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਬਛਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੰਦਰ ਏਕ ਦੁਆਰ ਦਸ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾਡੀਏ ਨੇ, पांच कोस पर गऊ चरावत जीत सोचदा रखिए। कहते इस तरह ते हुण साडी की हालत है, मन रे कौन कुमत तै लीनी। कहते किथों तू पुठी मत ले ली। पुठी मत तो भाव है जिहड़ा गुरु साहब का हुक्म सी वो असीं नहीं मन्निया। ये नहीं है भी मैं मानदा भी तुसीं नहीं मानदे, मैं भी तुहाडे विच आपां गुरु साहब की दित्ती हुई सिक्ख्या मन दे विच नहीं वसो। गुर का कहया सो कार कमाओ, गुर की करनी काहे धावो। कहंदे गुरु दा जिहड़ा दस्सिया है हुक्म है रहत मर्यादा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੋ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨੈ, ਮਾਰੇ ਲੂਟੈ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ पंज विषय विकार ते मनुख कोई आ, ते जिहड़े दुनियावी तौर ते उदाहरणा दित्तियां ने होर जीव जंतां दीयां, मिर्ग मीन प्रंग पतंग कुंचर एक लोक विनाश। कहंदे मिर्ग नूं इक्को ही लोक जदों नाल
ਬਾਤ ਸੁਣਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ, ਘੰਡਾ ਹੀੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਲਾਈ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣੀ, ਉਹ ਭੱਜਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮਾਸ ਉਹ ਨਾ ਖਾਵੇ ਉਹਦਾ ਸਰਦਾ, ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਈ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਪਤੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਆ ਜੀ ਸਪਰਸ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੰਗਲ ਵਸਲੀਨ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੂਖਮ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਬਣੂ ਜਾਂ ਧੀ ਚੰਗੀ ਬਣੂ, ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਊ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਚੰਗੀ ਬਣਨਾ, ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਚੰਗੀ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਚੰਗੀ ਬਣੂ ਉਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਊ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਊ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवाल श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रेषण भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याई करंग तत्वतियां अरदास राम का से होई सहाय। आज्ञा हर गुरु श्लोक श्री हराय श्री हरि कृष्ण की ध्याई है, जिस रीचे सबद ज्ञान की बहादुर से मिलिया कहानियां नित आवे चाहे सब खानी होई सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब खानी होई सहाय। तथा पाक संयम दी योता ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਸਮੂਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਬੰਦ ਛਕਿਆ ਦੇਵੀ ਕਵਾਲੀ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। प्रथम सर्वत्र खालसा जी की अरदास है जी, सर्वत्र खालसा जी को वाहिगुरु।
वाहिगुरु नाम चेतावै। चेतावन का सदका सर्व सुख होवे, जहाँ जहाँ खालसा साहिब जी तहाँ तहाँ रचा देखते वाटसो जी आप जी दे सिखां सिक्खी दान केस दान रहत दान विवेक दान दान सरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन दे दर्शन स्नान चौंकियां झंडे मुगे जुगो जुगो टल धर्म का जय जयकार बोलना जी। आप जी दे सिखां दा मन नीमा मत जी मत पत दी राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु साहिब जी। आप जी दे पंथ दे सदा सहाई दा दार जीओ श्री ननकाना साहिब दे होर गुरुद्वारे गुरधामां जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन सेवा संभाल दा दान खालसा साहिब जी नूं बख्शो। हे नमाणियां दे मान ने दाणियां दे दान नियोगियां दी ओट धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह। आप जी के चरणा कमला की अरदास बेनती अगी प्रवाद जे हाजी की देखे आते हे हुक्म कमाहे कले आवे नानका सदी उठी जाई दे पाका अनुसार। माता चंद कौर नूं जिन्नी आप जी ने सौसां दी पूंजी सौंपी सी उसनूं पूरी करके कुछ जो भी शांति लई गुरमुख परिवार दी इकट्ठा हो के आप जी दे चरणों दा पूरा आसरा जाप नहीं रह लिखे। भुल की बाणी आई तन सगली चिंत मटाई दे श्री सहज पाठ प्रारंभ करवा के सुबह मुफ्त वेले आप जी दे लगे भोग पाए। प्रांत सच्चे पातशाह आप जी दे स्थान ते गुरसंगतां इकट्ठा होईयां। बाणी बड़ी सुनिंदा भाव हर रस कीर्तन दा भाव गुरमुख परिवार की हुई सेवा का भाव सृष्टि हुई रूह सहाय करो। माता चंद कौर नूं आप जी के चरणों के विच निवास बख्शो सच्चे पातशाह। पिछे गुरमुख परिवार रहतेदार भैन भाई साग संबंधियों को पानी च रखियो। भाना मन का बल बख्शो। अगे वास्ते घर दे विच सुख शांति तंदुरुस्ती बख्शो। परिवार की चढ़ती कला करो। किरत कमाइयां दे विच वाधा करो। दिन दुगनी रात चौबी तरक्की बख्शो। ऐसे वाहिगुरु आप जी ने बख्शना हुआ दाता विचों गुरमुख परिवार वालों कड़ा प्रसाद दे देखते सारे हाजर महाराज करो कृपा। अनक प्रकार भोजन बहु लो बिन मशकाई वाहिगुरु 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 नाम चेतावे। गुरमुख परिवार वालों आप जी सोहने जामे पहनाए गए। आप अंगीकार करो सेवकां लोगों का प्रलोभ के पर्दे के लिए सच्चे पातशाह परिवार वालों के प्रसंगता वालों आप जी सदकार वालों माया या माया का प्रवाह करो। गुरमुख परिवार के समूह संगतां में माया के खजाने भरपूर करो महाराज। हुनिया भूलना चुका तो क्षमा बख्शो करो कृपा वाहिगुरु। सार में संगतां की हाजिरी करो मंजूर। पावन पवित्र हुक्मना में बख्शो। जो जी आप जी के दाते आवे सो राजी खुशी के आवे। सही प्यारे मेरे जिन्हां दे मिलिया आप जी का नाम चेता रहे। नानक नाम जगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महला पंजवा सतगुरु संतारी मिले सुख नामा सुबा हमारी रहा दूजी ठार हार पर गोबारी लिखा छोड़ा लिखा छुटा हम दर्दना सर्व संग सदा निर्वाणा समना विहारी नानक दास संत दास परो रात लो मारी सर्व संग सदा निर्वाणा समना विहारी नानक दास संत दास परो रात लो मारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की
कीर्तन का समा मैं परिवार बारे हर एक परिवार बारे बोलता हूँ। अज थोड़ा जहा समा सीमित सी, परिवार बारे नहीं बोल होया। सो परिवार वालों हुक्म है साबका चेयरमैन मार्केट कमेटी अटूर डॉक्टर चंद सिंह जी वो सारा प्रोग्राम अपने तौर पर परिवार के कहने दसणगे। उन्होंने मैं बेनती करूँ भी मैच से आ जान। तो एक छोटी जी बेनती मैनू प्रधान प्रभात सिंह ने कहा सी, सामने बलवीर सिंह जी बैठे आ गल फैंस वाले या होर भी समाज सेवी बैठे आ बूटे जिन्होंने बूटे लाए ते बूटे की कांटी शांति की गई आ। आपको अपने बारां भाई पानी जरूर पा लिया करो ताकि बाहरों आए संगतां नूं अपना लंगर वधिया लगे। एक बेनती प्रवान करनी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਗੱਲ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਸੋ ਵੈਸਾ ਪਰਵਾਜ ਕੇ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਲੈ ਸਾਰ ਸਬਜ ਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪ ਦੇ 97 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬੀ ਆਯੂ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਲਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਲਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਈ ਜੀ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ। ਤਾਈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ 97 ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਟੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਿਚਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਤਾਈ ਜੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਿਚਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ
जो नितनेमी सन, तकरीबन सारा परिवार ही नितनेमी आ। लंबा समा इस गुरुद्वारा साहब की इस परिवार के जो सब तो पहले जो साडे जिहड़े बजुर्ग सी साडे नगर दे विच जो गुरुद्वारा साहब बनया तो इस परिवार के सत्कारयोग सरदार जिंदर सिंह जी सैकटरी साहब ने दादा जी बाबा देवा सिंह जी उन्होंने गुरुद्वारा बनाया। उस बाद इन्होंने पिता सरदार मुख्तियार सिंह जी इसी तरह इस गुरुद्वारा साहब में श्रद्धा भावना नाल हर रोज आना। तो ताई जी ने भी मैनू नहीं लगता कि क्यों जाना रहा हो गया कि उन्होंने सवेरे पहला साहब को आके मत्था ना टेकिया हो। हर एक दे नाल गुरुद्वारा साहब में जिहड़ियां भी माइयां ने जां उन्होंने को छोटी उम्र के बच्चों ने आना, हर एक को बड़े प्यार के सत्कार नाल सवेरे मिलना, हर एक ने परिवार वाले पुछना उन्होंने का सुभाव सी। सो चारे पासे घरों के भी उन्होंने बहुत बड़ा सत्कार सी क्योंकि बहुत सियाने सन। समाजिक तौर पर कोई भी किसी को भी परिवारक तौर पर कोई दुख तकलीफ होना कोई उन्होंने को रह लैनी तो उन्हें जी रह होंगी सी बड़ी वजनदार तो बड़ी वधिया होंगी सी। हर एक परिवार जाके उन्होंने को रह लेंदा सी सरकार जो मेरी मतामा भैन अक्सर ही जाके क्योंकि जिथे वो पढ़े लिखे सी उत्थे जिंदगी का बहुत बड़ा तजर्बा सी। गरीबों की मदद करने वाले सन। जेकर उन्होंने पता लग जाता सी मैं उन्होंने इस गल निजी तौर पर जानता कि उन्होंने मन के जे गल बैठ जाती सी कि वाकई इस परिवार की मदद करने वाली चाहिए है तो बहुत तनों मनो मदद करते सन। पर जे उन्होंने पता लग गया कि इन्होंने पखंड आ इन्होंने गलत काम नहीं करना इन्होंने मदद करना तो उस गल पर हट भी जाते कि इस परिवार की नहीं मदद करनी। ये उन्होंने बड़ी खूबी सी। सो उन्होंने सरदार जिंदर सिंह नूं ऐसी सिक्ख्या दी कि उन्होंने अज अपना जो स्थान आ उस समाज में बड़ा वधिया बनाया हुआ। तुसीं बड़े लंबे समय तो बैठे हैं उन्होंने बारे जिन्ना भी कुछ बोलिया जाए उन्ना घट क्योंकि माँ के बारे जिन्ना भी मर्जी बोली जाओ जो परिवार के माँ जाती है भावें किड्डी भी वड्डी वड्डी होवे उदों परिवार को पता लगता कि माँ जान का घाटा जो परिवार को कितना वड्डा है। माँ बारे गुरु ग्रंथ साहब के माँ बारे साढ़े अज कवियां ने साढ़े पुराने ग्रंथों के बहुत कुछ लिखा। सारे तुसीं पढ़े लिखे बंदे बैठे हैं कि जितों जो साढ़े गुरुआं ने मां नूं सब तो पहला दर्जा दिता गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेश्वर सब तो पहले उन्होंने मां नूं गुरदेव आख्या मां नूं अपना गुरु आख्या। सो अज बेशक हर मां अपने परिवार की तरक्की लई यतन सी दिंदी है। पर जिस माता के अज आप साधा के तौर भेंट करना है माता चंडकर नूं उस माता ने अपने परिवार की चढ़ती कला वास्ते आपके परिवार की तरक्की वास्ते बहुत बड़ा योगदान पाया। आपके रिश्तेदार मित्रों भी जिन्हें उन्होंने साझे संबंधी भी सी उन्होंने भी चंगी सेध दे के उन्होंने तरक्की लिए हमेशा यतन किए। सो अज उन्होंने जिन्हें भी रिश्तेदार आ सो खास करके जो इन्नियां लंबियां रिश्तेदारियां हो जाए दूजी तीजी पीढ़ी चल पवे कई बार रिश्तेदारियां दूर हो जाती। पर जे मैं फलेवाल परिवार की गल करा सरदार जिंदर सिंह जी बैठे आ मैनू नहीं लगता होना कि सरदार जिंदर सिंह ने तो सरदार जिंदर सिंह ने किते माता को किसी गल तो जवाब दिता होगा। जेकर माता ने कितने जिंदर सिंह को कह दिता होना तैयार होने कि तू ड्यूटी से नहीं जाना तो वीर जी नहीं गए होने। ये गल मैनू विश्वास है क्योंकि मैं भी इन्होंने इस परिवार को बड़ा नेड़े होकर देखा कि उन्होंने हर हुक्म ये रबी हुक्म आते थे। इसी तरह ही सरदार जिंदर सिंह बेशक उन्होंने भतीजे फलेवाल तो दूजी तीजी पीढ़ी चल पी है पोते पड़ोते हुए पर फिर भी उन्होंने मूँह चो हर वक्त कुआली कहते रहा क्योंकि उन्होंने सत्कार ही फलियाल भी इन्ना सी ते उन्होंने उस परिवार की तरक्की लिए भी हमेशा यतन की। ये चंगे इंसान के गुण होंगे माता के बहुत बड़े गुण सन। जिस गुरुद्वारा साहब बैठे मैं पहले जिन्हें गल कर रहा इस गुरुद्वारा साहब की सेवा पिछे चली 1,60,000 रुपया गुरुद्वारा साहब उपर चक्के अपने सारे नगर को पता इस परिवार ने उदों दिता। कोई भी सेवा चले सरदार जिंदर सिंह जो रिटायर हो गए बहुत लंबा समय जो गुरुद्वारा साहब की सेवा चली तकरीबन हर को लेकर 2-3 घंटे सेवा के रहना कोई ना कोई क्योंकि जिहड़े बंदे नूं तजर्बा हुंदा इन्होंने चंगे थावां ते नौकरी की चंगा इन्हों सिस्टम का पता सी इन्होंने संगत के नाल आके हर काम को वधिया बनाने के लिए यतन किए। तो वो सेवा ही अज इन्हों मैं कहना कि समाज के जो मान सत्कार मिल रहा वा। सो अज भी इन्होंने अपनी माता की याद के
क्योंकि संगत का विचार है कि थोड़े समय में जो वधिया बनानी है उस करके कहते भी मैं तो उदों भी सेवा जी तुम मर्जी ला लो तो एक आपकी माता की याद के मैं धार्मिक लाइब्रेरी इस गुरुद्वारा साहब बनानी है जिथे भी संगत होगी उत्थे कमरा बना के वधिया तरीके नाल इस गुरुद्वारा साहब धार्मिक लाइब्रेरी बनेगी माता जी के नाम से ताकि साढ़े जो बच्चे है जिवें हुणे भाई पिंदर सिंह ने गल की बच्चा कीर्तन करके गया भाई नरमल सिंह का इस तरह बच्चों को चंगी सीख मिले वो धार्मिक हो ताकि आने वाला साडा जिहड़ा भविख वो चंगा हो। सो साध संगत जी अज समय ने ऐसी करवट लई है कि ऐसी गुरु की कृपा हुई है कि ऐसा किसानी का संघर्ष चलिया अज सारा कुछ ही बदल के तस्वीर ही बदल गई पंजाब की समुचे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल गई है। अज सारे लोगों को पता लग गया कि असी सानू किवें इकट्ठे होना चाहिए या किवें सानू हक मंगने चाहिए या साडी प्राप्ति है की करना चाहिए। सो अज साडे आने वाले बच्चे है जिहड़े वो चंगे बन इसलिए परिवार ने अदम किया कि जिवें ये परिवार पढ़े लिखे में बच्चे हर एक बच्चे पढ़े लिखे हो हर एक बच्चे धार्मिक हो। सो एक धार्मिक लाइब्रेरी वधिया तरीके से बनवाई जाएगी उसको वधिया तरीके चलाया जाएगा। सो बहुत सारिया संगतां जो विराजमान मैं उन्होंने हाजिरी लाना सतिंद्रपाल सिंह जी काका गरेवाल चेयरमैन मार्केट कमेटी जगाओ वो हाजिरी लवाए गए। डॉक्टर दरबारा सिंह जी वो साडे विराजमान मनजीत सिंह जी सैकटरी जगाओ तो सरबत सिंह जी चाकर सैकटरी अटूर मनजिंदर सिंह जी डल्ला जसदा सतपाल सिंह जी झोलडा साबका सरपंच झोलडा सरपंच परमजीत सिंह जी सहजापुर मास्टर जंग सिंह जी झोलडा जसविंदर सिंह जी डीएमओ साहब पटियाला प्रधान सरजीत सिंह जी गोयल आर्ट एसोसीएशन कुलवंत सिंह जी टूर मनजीत सिंह जी डप्टी डीएमओ साहब सरपंच जगजीत सिंह जी कांटे कला डॉक्टर बलदेव सिंह जी जुलाओ साडे नगर के सरपंच साहब समुची पंचायत साडी एनआरआई कमेटी साडे ट्रस्ट श्री राम कॉलेज ट्रस्ट के सारे मैंबर साहबान बाबा जीवन सिंह जी गुरुद्वारा साहब के सारे प्रधान साहब गुरुद्वारा महापुरुषों के स्थान खास तो संगत आई है। सो सारिया संस्थावां दे आ साडे नगर के जिन्नियां भी संस्थावां सारे के मुखी सारे के नुमाइंदे इत्थे बैठे हैं क्योंकि परिवार का सारा नाम प्यार है। सो माता साहब ट्रस्ट वो भी ब्राह्मण मैं सारिया संगतां का जिथे प्रभाव करदा क्योंकि साडे नगर के कोई बुलारा बोलता बहुत सारे बुलारे जिहड़े बोल सकते हैं पर साडे नगर के कोई बुलारा बोलता करके मैं सारे बुलारिਆਂ ਦੇ प्रभाव करदा सारिਆਂ ਨੂੰ जी आखदा। सो परिवार वालों गुरुद्वारा साहब वास्ते सेवा भेजी गई है महापुरुषों के स्थान वास्ते सेवा भेजी गई है जंड साहब वास्ते सेवा भेजी गई है गुरुद्वारा बाबा जीवन सिंह जी उहदे वास्ते सेवा भेजी गई है गुरुद्वारा बाबा जीवन का अंदर उहदे वास्ते सेवा भेजी गई है संत रामदास जी कुटिया वाले उन्होंने वास्ते सेवा भेजी गई है माता साहबपुर सोसाइटी वास्ते सेवा भेजी गई है एनआरआई कमेटी जिस कमेटी वालों सारे नगर के उत्ते बूटे लाए गए हैं। सो उस कमेटी वास्ते सेवा भेजी गई है। सो आप एसोसीएशन वालों सो संदेश भेजा गया वा मैं सारिया संगतां का फिर एक बार धन्यवाद करदा जो जिस माता की याद के सारिया संस्थाओं को सेवा की गई है मैं सारिया संस्थाओं को समूचे परिवार का धन्यवाद करदा। सो नाल ही साध संगत की बेनती है क्यों देख बाकी देख तो सारे ने प्रशादा तैयार प्रशादा जरूर छके जाना। सो निरंतर साहब बेनती है परिवार वालों सो आप फिर एक बार जिन्नियां भी संगतां आईयां क्योंकि सियाने कहते खुशी बढ़ाया बादी के दुख बढ़ाया घटा तुसीं जिन्ने भी परिवार नाल दुख साझा करने वास्ते आए हैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। सो इन्हां शब्दां नाल मैं फतेह करवाउणा कि संपत साहा लिखिया मिलकर पाओ ते दिलो सजन सीसरी